बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स के पास इनको ले जाया गया, पर कहीं से भी कुछ भी इनको फर्क नजर नहीं आ रहा था। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ दिन ब दिन ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਛਾਤੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਊ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਜੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਘਰ ਬੈਠੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਰੂਸਡ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਕਰੂਸਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। अपने हाथों को उठाओ, उस एक हाथ को उठाओ, एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर रखो। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। Be healed in the name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा मैंने कहा बरकत तुम्हारी और चंगाई तुम्हारी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हम लगातार चर्च में परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को होता हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही बड़ा काम इस बहन की जिंदगी में किया। मैंने जब टेस्ट कराया तो पता चला कि मुझे जड़ वाली रसौलियाँ हो गई हैं। डॉक्टर के कहने के अनुसार मैंने सर्जरी करा ली। उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि तो आपको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप अपनी यूट्रस और ओवरीज को जल्द से जल्द निकलवा लीजिए। लेकिन परमेश्वर जो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए हैं, उसी परमेश्वर ने इनको एक नई आशा दी। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है और मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टमनी देने जा रही हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है। बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 2015 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के कुछ महीनों के बाद ही मुझे काफ़ी पेन रहने लगा स्टमक में। तो मैंने जब टेस्ट कराया तो पता चला कि मुझे जड़ वाली रसौलियाँ हो गई हैं और बहुत ख़तरनाक हैं। तो उन्होंने इमरजेंसी में बोला कि आप सर्जरी करा लो, आगे चल के कैंसर हो जाएगा। डॉक्टर के कहने के अनुसार मैंने सर्जरी करा ली और उसके बाद में फिर मैं कंसीव किया मैंने और फर्स्ट बेबी को जन्म दिया। उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि भले आपने फर्स्ट बेबी को आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन ये जो जड़ वाली रसौलियाँ ये दोबारा से फिर आएंगी, तो आप कभी भी दूसरे बेबी का सोचना भी मत, क्योंकि यदि आप ये दूसरे बेबी का यदि आप रिस्क लेंगे तो आपको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसे ही फर्स्ट बेबी यदि आपका कंसीव होता है तो आप अपनी यूट्रस और ओवरीज को जल्द से जल्द निकलवा लीजिए। फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद कुछ समय बाद ही मुझे वापस से स्टमक में वही पेन स्टार्ट हो गया था जो मुझे पहले हुआ करता था। तो मुझे वापस से ये जड़ वाली रसौलियाँ जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई थी। जब मुझे काफ़ी पेन रहने लगा तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि जो सिस्ट पहले था वो वापस से वो बन गया है और उसके बाद में ओवरीज और यूट्रस में वो वापस से फैलने लग गया है। तो थोड़ा मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही हम लोगों के माइंड में ये बात डाल दी थी कि आप सेकंड बेबी का या फिर आपकी लाइफ में ये सिस्ट जो है वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए आपको यूट्रस तो और ओवरीज तो निकलवानी ही पड़ेंगी। पर मैं और मेरे हस्बैंड की ये डिज़ायर थी, हार्ट डिज़ायर थी कि हम लोगों का सेकंड बेबी भी हो। तो पर जब डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद में हम लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए अपने लाइफ से रिस्क लेने के लिए भी रेडी थे और ये सोचा था कि नहीं सेकंड बेबी भी हम लोग जल्द से जल्द प्लान करेंगे। ऐसी कंडीशन में भी मेरा विश्वास जो था वो परमेश्वर में पूरी तरीके से था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले भी मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं जानती थी कि परमेश्वर आगे भी मेरी लाइफ में बड़े बड़े काम ही करेगा। और मैं अंकुर मिनिस्ट्री से भी बहुत सालों से जुड़ी हुई थी। तो डॉक्टर के सब कुछ कहने के बाद भी मैंने कि परमेश्वर जो है वो वही चंगा भी करता है और मेरी हार्ट डिज़ायर को वही पूरा भी करेगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि डॉक्टर ने बोले कि यदि आपके 2 बच्चे आप सोच भी नहीं सकते हो, मैं जानती थी कि परमेश्वर जो है वो जो मैं चाहती हूँ परमेश्वर जो है वो उसको ब्लेस करने वाला ही परमेश्वर है। और लगातार मैं हर संडे को और हर थर्सडे को जो प्रेयर मीटिंग होती थी मैं उसको अटेंड करती थी और डेली प्रेयर माउंटेन में जो प्रेयर होती थी तो उसको विश्वास के साथ में रिसीव करती थी। और 7 मई 2023 को जब मैं प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रही थी तो परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग के लिए जो प्रेयर परमेश्वर के दास ने की तो उसको मैंने रिसीव किया अपने लिए। आपके गर्भ के अंदर आपकी ओवरीज, आपकी वो सब पाइप्स, वो चीजें, वो ट्यूब्स यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को रिसीव कर रही हैं, डिलीवरेंस को रिसीव कर रही हैं। मैं उससे ओपन होता हुआ देख रहा हूं, आपको जल्दी गवाही के साथ आता हुआ देख रहा हूं इन जीसस नेम। और फेथ के साथ जो प्रेयर परमेश्वर के दास ने की तो उसको मैंने रिसीव किया अपने लिए। उस प्रेयर को मैंने जब फेथ के साथ रिसीव किया तो नेक्स्ट मंथ ही जब मेरे पीरियड मिस हो गए और जैसे ही मैंने प्रेगनेंसी का टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। और क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो कहा था कि आप सेकंड बेबी का कभी सोच भी नहीं सकते हो और आपको ये जो जड़ वाली रसौली आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो लेकिन परमेश्वर ने मुझे और मेरे बेबी को पूरे तरीके से संभाल के रखा। क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कहना था कि यदि आपको सिस्ट है
है तो आप मतलब बेबी तो ऐसा दोनों एक साथ दोनों रह ही नहीं सकते हैं, तो या तो बेबी होता है या फिर सिस्ट होता है। लेकिन सिस्ट होते हुए भी मैं बेबी को मैंने कंसीव किया, परमेश्वर ने उसे संभाल करके रखा। और जब मैं डॉक्टर के पास गई और जब मैंने उनको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो डॉक्टर भी पहले सरप्राइज़ हो गई कि उन्होंने मतलब बोला कि आपको सिस्ट है लेकिन आपने कंसीव कैसे कर लिया है। फिर उन्होंने 9 मंथ तक पूरा चेक किया मुझे प्रॉपरली, और पूरे 9 मंथ के बाद जब मेरी डिलीवरी हुई तो 5 फरवरी 2024 को परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और जब डॉक्टर ने दोबारा से सब कुछ चेक किया तो उन्हें यूट्रस और ओवरी सारे कुछ क्लीन मिले, तो वो भी बहुत खुश थे और सरप्राइज थे कि मतलब सिस्ट की वजह से बेबी को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि बेबी पूरी तरीके से हेल्दी, बहुत ब्यूटीफुल और जैसे बिल्कुल परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग के समान। जिन भी बहनों के पास में आज बेबी नहीं है और जिनकी हार्ट डिज़ायर है कि परमेश्वर उनकी फैमिलीज़ को पूरा करें, मैं उन बहनों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए कि वो आपके ही लिए लिखा गया है, और एक छोटे बच्चे की तरह उसको पूरा विश्वास के साथ रिसीव कर लीजिए। जैसे आपके पिता ने आपके लिए लिखा हुआ है, बिल्कुल उसको वैसे ही रिसीव कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कितनी बड़ी गवाहियों को दिया है। और परमेश्वर ने मुझे 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स के साथ में ब्लेस किया है, और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप एक भी बेबी सोच नहीं सकते हो, और अब परमेश्वर ने मुझे दो दो बेबी ब्लेसिंग्स दी हैं। और अब मैं अपने परिवार में अपने दोनों बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी हार्ट की डिज़ायर को पूरा किया है। और इस बिगेस्ट ब्लेसिंग के लिए मैं परमेश्वर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के दास दासी का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उसकी हजूरी पर भी हमारे बीच में सबसे जोर से जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। जिदे सिर ते यहोवा हथ रखदा।